इनमें भी कैमरा शटर है। गुड इवनिंग ऑल। एक 5 मिनट रुक जाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। 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 या ठीक है, हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। हम एक छोटा सा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आप क्यों एसीपी फंक्शनल कंसल्टेंट बनना चाहते हो वो मुझे थोड़ा जानना है। ओके। सो आपका नाम एंड थोड़ा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बोलिए। अतुल से स्टार्ट करते हैं। अतुल, यस प्लीज। Hi, good evening, all of you. Myself, Atul Kumar Singh. Currently, I am working with the pharmaceutical companies from last 10 years, and I have worked on SAP related to PP module as well as SAP ATTP, Advanced in Track and Test System in Pharmaceuticals. And just I want to learn more about detail in all to cover all the aspects of the SAP PP modules. I think uh, for from this session, I will get more and more information all and other uh, activities which I have not performing. That's all. हेलो। 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 हेलो, हाँ सर। हेलो। हेलो। यस सर।
हेलो। 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 अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, अभी आवाज आ रहा है। जी। तो अतुल से स्टार्ट करते हैं। यस अतुल प्लीज। Hi, good evening, all of you, and myself Atul Kumar Singh. I I have total 10 years of experience in pharmaceutical industry in manufacturing section, and I am working on SAP PP modules in my organization as well as in SAP ATTP module, that is for the advanced in track and test system in pharmaceuticals. Then I am basically from UP, my native place from Mirzapur, and I am working with the USB Private Limited in Daman location. That's all. Hello Atul. Can you Yes, hear sir. me? So are you working as a consultant or a end user in your firm? I am working as an end user in Okay. in production department, in manufacturing department. You are on mute. Yes, sir. I am in USB Private Limited in Daman. No, no, I'm speaking to Jagdish actually. Okay, sir. जगदीश आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए. Yes. Hello. Good evening, everyone. Myself, Jagdish Panduranga Sutar. I have total 10 years experience in manufacturing department. Right now, I was working in the aerospace industries, FSCC, Austria, Europe. Uh, and right now, I was working in SAP, production planning the PP module. Is the starting and end. That means starting of production and end of production. Okay. Are you working as a consultant or end user? No, 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 no. I'm working with end user. End user. Okay. Fine. या माही आप बताइए. Hello, sir. Yes, माही. Hello. Sir, myself Mahendra Khandizod. Hello. हाँ, कंटिन्यू करिए ना आप. हाँ. Yes, sir. I have completed mechanical engineering and currently working in production in plastic injection molding. तो आपको कितने About इयर्स का 4 एक्सपीरियंस years, है? 4 years of experience. Fine. सचिन आप. Hello, everyone all. Good evening. My name is Sachin Shinde.
I'm basically from Maharashtra, Pune, but currently working in MP Bhopal in a cable factory. I have total 18 years of experience, and I'm working as an end user in SAP from last maybe 10 years, 10 to 12 years. Okay. Basically, I'm looking after the production activities. I'm a production manager. So I want to learn this course to work in future as a SAP consultant because I want to switch my field from production to SAP. Okay, fine. Thank Rahul you. Rai, हाँ सर। सर गुड इवनिंग। good evening. सर मेरा नाम राहुल राय है। मैं इधर अहमदाबाद में जॉब करता हूँ। पिछले साल में 5 साल से जॉब करता हूँ, पिछले 5 साल से एसएपी में। और सर मैं जी। उत्तर प्रदेश यूपी का रहने वाला गाजीपुर से। आपको कितना इयर्स का एक्सपीरियंस है? सर 5 ईयर। ओके राइट। आप कौन सी इंडस्ट्री में हो? सर टेक्सटाइल, विशाल डेनिम टिपाल ग्रुप, टेक्सटाइल अहमदाबाद। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जी। ओके। गोविंद। Hello. यस गोविंद। Good evening, sir. गुड इवनिंग। यस। Myself Govind, and I'm from Rajasthan, Ajmer, and Mhm. currently working in Cargill India Private Limited, logistic department, and I have 1.5 year experience. ओके। आप मैं ऐसे कब के पास ऐसे आउट हो? क्या चीज? कब के पास आउट हो? एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और अभी कारगिल में काम कर रहा हूँ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में, राइट। और इंदु ऐसे कुमार भी। आप? हेलो। Yes, sir. फाइन। Myself, Hindu Kumar. I am from Bangalore. हम्म। I am working in Lakshmi Electronics, that production plastic industries. Working in the roadmap. I'm a production planner. Start to end user till to this. We follow the end to customer. Yes, sir. ठीक है, तो ये एक्चुअली हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन है। ओके, सो अब हम इसी वे से जाएंगे। ओके। या या सुमित आप? सर मैं पुणे पुणे से बिलोंग करता हूँ। मैं टाटा मोटर्स में अभी काम कर रहा हूँ। मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी थोड़ा सा सैप का रिलेटेड थोड़ा नॉलेज लेना चाहता हूँ, इसलिए एजुकेशन ज्वाइन किया। थैंक यू। विजय। हेलो विजय, म्यूट पे आप। विजय, विजय कामड़े, यू आर ऑन म्यूट। विशाल। Hello, हाँ। good evening all. My name is Vishal Merga. I have worked in Mahindra and Mahindra, Chakan, Pune. In last 10 years, I have total experience with 14 years, and I am working in production as an assistant manager in production department. सब लोग हो गया, आई थिंक सबका इंट्रोडक्शन हो गया है, राइट? विजय का आवाज नहीं आ रहा, इज ऑन म्यूट। जस्ट अ मिनट। जी। सो
अभी आई थिंक कोई न्यू ज्वाइन हुआ है। कौन ज्वाइन हुआ नहीं यार, नहीं ठीक है। ओके, सो आई एम विनीत। एक्चुअली आई एम हैविंग 4.5 years of experience in as a ACP consultant, and before that I was having 5 years of experience in production. So I'm having about total 10 plus years of experience in production as well as a ACP consultant. So my current position is consultant in my organization, and around abhi I have worked on about 15 plus client as of now. और मुझे अराउंड 2 साल प्लस एक्सपीरियंस है फॉर टीचिंग। अभी फ्रॉम फॉर एस्टेक आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 6 months। बिफोर दैट मेरा खुद का भी क्लासेस था और किसी और इंस्टीट्यूट के लिए भी मैं सिखाता था, ठीक है। दिस इज माई 8th बैच, ओके, एंड सेकेंड बैच फॉर एस्टेक, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम ड्यूरिंग अवर एसीपी कोर्स हम क्या सीखने वाले वो मैं आपको क्लैरिटी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप इसका कोर्स क्या रहेगा। मैं सब आपको जो अपना ग्रुप है, एग्जिस्टिंग ग्रुप, उस पे शेयर करूंगा जो भी है, ओके। जो भी अपडेट्स है वो ग्रुप पे शेयर करूंगा, ठीक है। सो अभी बेसिकली आफ्टर दिस कोर्स आपका जो पोस्ट रहेगा वो रहेगा एसीपी फंक्शनल कंसल्टेंट, ओके। तो हाउ टू बिकम एसीपी फंक्शनल कंसल्टेंट इन प्रोडक्शन प्लानिंग। एसीपी में क्या होता है, मॉड्यूल्स होता है, अलग अलग मॉड्यूल्स है। प्रोडक्शन प्लानिंग है, एसडी मॉड्यूल है, जीएमएम मॉड्यूल है, पीपी मॉड्यूल है, पीएम मॉड्यूल है, बहुत सारे मॉड्यूल्स है, ओके। 15-16 अराउंड मॉड्यूल्स है। सो बेसिकली अभी हमें क्या बनना है, हमें बनना है एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट। सो आफ्टर दिस कोर्स वी विल बिकम फंक्शनल कंसल्टेंट इन प्रोडक्शन प्लानिंग, एसीपी फंक्शनल कंसल्टेंट इन प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक है। सो हाउ, व्हाट विल बी आवर अप्रोच, व्हाट विल बी आवर कोर्स और बाकी चीजें वो मैं सब आपको डिटेल में शेयर करूंगा। आज जस्ट फर्स्ट क्लास है इसलिए जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है अपना, ठीक है। बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज आपको आपका वे, आपका जो एक्शन प्लान है वो हमें समझना बहुत इसेंशियल है, ओके। एक्चुअली एट प्रेजेंट मेरा सिस्टम जो है ना वो थोड़ा इशू कर रहा है। आई थिंक कुछ अपडेट आया है मेरे इसमें, बट मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सो आज माइट भी मैं शेयर स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास से मैं इंश्योर करूंगा कि आपका स्क्रीन शेयर होगा प्रॉपरली, ठीक है। सो मैंने अभी तो एट प्रेजेंट मोबाइल से ज्वाइन किया है, बिकॉज वो जो इन बिटवीन कुछ इशू आया था ना, बंद हो गया था, लैपटॉप चल नहीं रहा है प्रॉपरली, कुछ बग्स आया है, आई थिंक नेट नहीं कनेक्ट हो रहा है मेरा। सो ठीक है, कोई बात नहीं। आज आप खाली हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बोलता हूँ मैं आपको, क्या क्या चीजें रहेंगी इन एसीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, क्या क्या पार्ट्स रहेंगे, क्या क्या रोल रहेंगे, ठीक है। बेसिकली मैं एक स्क्रीन शेयरिंग मोड पे सिखाता हूँ। एक जैसे एक्सेल होती है अपनी, एक्सेल में हम जो भी है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि इसमें क्या वे है, क्या अप्रोच है, क्या कोर्स है, ओके, क्या स्टेप्स है। वो मैं आपको सब स्क्रीन शेयरिंग पे सही से समझाता था, बट अभी मैं थोड़ा टेक्निकल इशू मेरा आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इग्नोर कीजिए ये। जितना आपको समझता है अभी ग्रैब होता है वो हम ट्राई करेंगे। अगर कुछ इश्यू रहेगा तो मैं कल जब आपको स्क्रीन शेयर करूंगा ना, तो उसमें आपको मैं और आपको क्लैरिटी आएगी अच्छे से, ओके। सो अभी के लिए सॉरी, मैं स्क्रीन तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट ठीक है। अभी डिस्कस करते कि क्या एसीपी प्रोडक्शन प्लानिंग है। एसीपी प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या अप्रोच रहेगा, जैसे सिलेबस क्या रहेगा, कितने रोल्स होते हैं इन एसीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, कितने सर्वर्स होते हैं इन एसीपी प्रोडक्शन प्लानिंग, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ 4 से 5 ये होते हैं रोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये कोर्स करने वाले, ओके। सो दिस कोर्स इज अबाउट फंक्शनल कंसल्टेंट। एक होता है फंक्शनल कंसल्टेंट, ओके। सेकंड रोल होता है एबेपर। एबेपर मतलब जो कोडर होता है, ओके, कोडिंग करता है, उसको बोलते हैं एबेपर। उसका लॉन्ग फॉर्म भी है, वो मैं सब बोलूंगा आपको धीरे धीरे क्या होता है क्या नहीं। तीसरा जो रोल होता है वो होता है बेसिस का, ओके। चौथा जो रोल होता है वो होता है एंड यूजर का, ओके। सो बेसिकली ये चार रोल होते हैं इन एसीपी, ओके। एबेपर,
functional consultant, basis, G end user. Okay, so these are the basically 4 roles in GCP production planning. So अभी ये roles क्या है, मतलब एबेपर का काम क्या है, उसके बाद आपका फंक्शनल का काम क्या है, उसके बाद आपका क्लाइंट का काम क्या है, आपका रोल क्या है, क्लाइंट का रोल क्या है, बेसिस का रोल क्या है, ठीक है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, सो बेसिकली फंक्शनल कंसल्टेंट जो ये आई मीन मिक्स ऑफ अ रोल है। मिक्स रोल मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा कोडिंग का भी ज्ञान चाहिए, इसके बाद आपको थोड़ा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री का स्टेप्स है, प्रोसेसेस है, सो उसका भी क्लैरिटी हमें होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट वी शुड हैव द क्लैरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर आल्सो, मतलब हाउ टू वर्क ऑन दैट। ओके, सो एसीपी जो है बेसिकली इट्स अ ईआरपी सॉफ्टवेयर। ईआरपी मीन्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि एसीपी इज ओनली वन सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, एसीपी आल्सो हैविंग इट्स कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, एसीपी में भी कॉम्पिटिटर, जैसे फॉर एग्जांपल Oracle is a competitor of GCP. Okay, Oracle is one of the competitor of GCP. Okay, GCP ही बोलना है आपको, सैप नहीं बोलना है। ठीक है, सैप कोई बोलता है नहीं, बेसिकली जो इंडस्ट्री होता है उसमें जीसीपी करके ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं सेम लैंग्वेज कर रहा हूँ यूज। ओके, आपको भी सेम ही लैंग्वेज यूज करना है, जो मैं बोलूंगा वो। ओके, सो बेसिकली एसीपी का भी जैसे मैंने बोला आपको कॉम्पिटिटर है। एसीपी इज ईआरपी सिस्टम। ईआरपी मीन्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारा एक्टिविटीज होता है इन सैप, सॉरी बहुत सारा एक्टिविटीज होता है इन इंडस्ट्री। बहुत सारा मतलब बहुत सारा एक्टिविटी, जैसे आपका रॉ मटेरियल है, आपने खरीदा, आपके कंपनी में एंट्री हुआ उसका। ओके, वो रॉ मटेरियल आपके पर्टिकुलर प्रोडक्शन में आपने कंज्यूम किया। ओके, आपको कुछ आउटपुट आया। ओके, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपने सेल किया टू योर कस्टमर। ओके, दिस इज ऑल अ स्टेप्स विच इज परफॉर्म बेसिकली इन जेवरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बोल दीजिए, ट्रेडिंग में बोल दीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में वॉट एवर। ओके, आईटी में भी आपका एक मतलब सर्विस रहता है कुछ। ओके, सर्विस चार्जेस। सो लाइक दैट आपका एक इनपुट होता है और एक कुछ आउटपुट होता है। ओके, इन बिटवीन आपके सब स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ भी कंपनी है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो सब मैनुअल वर्क करेगी। मैनुअल वर्क इन द सेंस आपका, आप रॉ मटेरियल कुछ खरीद रहे हो फ्रॉम सम वेंडर, तो वो एक रजिस्टर में करेगी नोट कि हाँ इतना हेलो। सो सो व्हाट आई मीन टू से कि ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री मैनुअल वर्क करेगी, जैसे रजिस्टर में करेगी नोट कि हाँ ये दिस पर्टिकुलर मटेरियल आई हैव परचेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेंडर। ओके, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, दे नीड ईआरपी सिस्टम्स। ओके, दे नीड कि समवेयर इसका एंट्री मेंशन होना चाहिए, इसका कॉस्ट मेंशन होना चाहिए। क्यों मेंशन होना चाहिए उसका एंट्री? क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए कि हाउ मेनी स्टॉक करंटली अ पर्टिकुलर कंपोनेंट आई एम हैविंग एट प्रेजेंट। जैसे ये कंपोनेंट मैंने कुछ खरीदा जो कि मेरा कंज्यूम होने वाला है। कंज्यूम मीन्स जो कि कंजम्पशन मीन्स मतलब टू प्रोड्यूस द आउटपुट, वट एवर द इनपुट इज देयर दैट विल बी कंज्यूम, राइट? सो ये जो भी इनपुट मेरा कंज्यूम होने वाला है, अभी इसका एट प्रेजेंट स्टॉक कितना है इन माई इन्वेंटरी। ओके, और कितना स्टॉक मेरा कंज्यूम होने वाला है इन फ्यूचर। ओके, और कितना स्टॉक कंज्यूम होके मेरा क्या आउटपुट आया। ओके, सो ये डेटा जो ये रिक्वायर्ड है, सो दिस इज ऑल वी कैन मैप इन अवर सॉफ्टवेयर कॉल्ड SAP ACP। ओके, सो बेसिकली ईआरपी सिस्टम ये चीज करती है कि आपकी हर पॉइंट पे हर एक चीज का आपका हिस्ट्री वो सेव करता है, और उसका जो फ्यूचर है मतलब फोरकास्टिंग है वो भी आपको प्रोवाइड करता है। एग्जिस्टिंग स्टॉक भी आपको वो प्रोवाइड करता है। ओके, दिस इज अबाउट स्टॉक ओनली। मैं अभी इन्वेंटरी के ही बात कर रहा हूँ। ओके, आई एम जस्ट फोकस ऑन इन्वेंटरी। ओके, बट इन्वेंटरी क्या होता है, इन्वेंटरी के साथ उसका कॉस्ट एसोसिएट होता है। ओके, मतलब
एवरी इन्वेंटरी कैरी सम कॉस्ट। जैसे एक कंपोनेंट है, आप खरीदते हो, ओके, फ्रॉम वेंडर, ओके, सो इट इज हैविंग सम कॉस्ट, ओके, लाइक सपोज आप एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है वेंडर ए से खरीदते हो तो द कॉस्ट इज 100 रुपीज, वेंडर बी से खरीदते हो तो कॉस्ट इज 500 रुपीज, और से सपोज 400 रुपीज फॉर फर्स्ट वेंडर, फॉर सेकंड वेंडर इट इज 450 एंड फॉर थर्ड वेंडर इट इज 500, ठीक है। सो प्रोडक्ट आपका सेम ही है, कंपोनेंट आपका सेम ही है, बट उसका कॉस्ट वेरी हो रहा है, ओके। वेंडर ए से खरीदते हो तो 400 है, वेंडर बी से खरीदते हो तो 450 है, वेंडर सी से खरीदते हो तो 500 है, ओके। सो ये जो हम इसके जो कंपैरिजन करेंगे, मतलब जो कंजम्पशन करेंगे, और फिर इसके जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है इन फ्यूचर, मतलब मुझे क्या करना है, वो कंपोनेंट कंज्यूम करके मुझे एफजी आउटपुट फॉर्म करना है, ओके। एफजी मतलब फिनिश गुड, ओके। इनपुट कंज्यूम करके मुझे आउटपुट चाहिए, कुछ भी कंसिडर कर लीजिए आप। इनपुट एक छोटा सा इनपुट, कुछ भी, ओके, छोटा सा चीज है जो आप कंज्यूम करते हो एंड यू प्रोड्यूस योर आउटपुट, ठीक है, वट एवर। जैसे अभी किसी ने बोला वो फार्मा इंडस्ट्री से, तो फार्मा इंडस्ट्री में भी जैसे कंजम्पशन होता है, ठीक है, जो आपका रॉ कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, वो कंज्यूम होता है, राइट, एंड फिर आपका फिनिश प्रोडक्ट होता है मैन्युफैक्चर, ओके। सो वट एवर, ठीक है, जस्ट आई एम फोकसिंग ऑन इनपुट विच इज बीइंग कंज्यूम एंड आउटपुट जो अपना मैन्युफैक्चर होता है, ओके। तो ये जो से अपना सिनारियो है अभी एट प्रेजेंट, जैसे वेंडर ए बी और सी मैंने बोला, तो ए वेंडर ए से अगर मैं परचेस करता हूँ किसी कंपोनेंट को तो इट इज 400 रुपीज, वेंडर बी से अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो इट इज 450, एंड वेंडर सी से अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो इट इज 500, ठीक है। सो सेम कंपोनेंट में कंज्यूम कर रहा हूँ, सेम मेरा आउटपुट आ रहा है, क्वालिटी भी सेम है, सब सेम है, खाली इतना ही फर्क है कि वेंडर ए जो है मेरा वो फॉरेन का है, वेंडर बी जो है मेरा इंडियन है, और वेंडर सी कुछ और है, ठीक है, मतलब वो भी इंडियन है बट थोड़ा कॉस्टली है, ओके। सो अभी जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, सपोज मेरा 400 कॉस्ट था तो मैं सेल करता था एट 500, अगर मेरा 450 कॉस्ट है तो मैं सेल करता था एट 550, और मेरा 500 अगर इनपुट कॉस्ट है तो मेरा आउटपुट कॉस्ट मतलब जो मैं सेल करता हूँ वो है 600, ठीक है। सो मेरा 100 का जो है वो मेरा ये है बीच का, ठीक है, मेरा इनपुट है 500 रुपीज का और मैं जो सेल कर रहा हूँ वो 600 रुपीज का है, ओके। सो ये जो 100 रुपये का मेरा फायदा है, ओके, ये जो मेरा एडवांटेज है, ये मुझे ऑलवेज रखना है, ओके, ये मुझे ऑलवेज रखना है, ठीक है। सो अभी मेरा जो कंपोनेंट है उसका जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो तो चेंज हो रहा है, मतलब उसका जो कॉस्ट है वो तो चेंज हो रहा है, ठीक है, बट मुझे आउटपुट सेम ही रखना है, ओके। सो ये जो कुछ फॉर्मुलेशंस है ये हम एसीपी में कर सकते हैं, ओके, एसीपी में कर सकते हैं, जीआरपी सिस्टम्स में ऑटोमेटिकली कर सकते हो, ओके। ऐसा है नहीं कि मुझे मैं आई मीन मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें करना पड़ता है या कुछ, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर सेटिंग्स मेंटेन करते हो, प्रॉपरली उसको कॉन्फ़िगर करते हो, तो सिस्टम्स आपका ये ऑटोमेटिक करेगा सब चीजें, ठीक है। मे बी आपका कंपोनेंट कॉस्ट चेंज हो रहा है बट आपकी जो आउटपुट जो सेलिंग कॉस्ट है वो आपको 100 रुपीज रखना है ऑलवेज ही, कि आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा ऑलवेज ही। सो ये जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है ये आपका ईआरपी सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा, ओके, ये सब चीजें ऑटोमेटिक करेगा ईआरपी सिस्टम्स, राइट। सो बेसिकली ऐसे छोटे छोटे जो कैलकुलेशंस है या फिर बड़े कैलकुलेशंस है, ओके, ये सब मैनेज करता है आपका ईआरपी सिस्टम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ओके। सो दीज आर सम एडवांटेज ऑफ ईआरपी सिस्टम, ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम, मतलब ईआरपी सिस्टम में क्या क्या होता है, ईआरपी सिस्टम में हम कंपेयर कर सकते हैं, ओके, बेसिकली हम कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे आउटपुट्स हमारे इनपुट्स, ओके। हम स्टॉक इन्वेंटरी जो है मैनेज कर सकते हैं, ओके, हम कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन किस काम के लिए आता है, कंपैरिजन जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को देखना है कि भाई मेरा कॉस्ट कहाँ जा रहा है, मैं मेरा प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करूंगा, ओके, या प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर पाऊंगा, ओके। सो इन दैट केसेस हमें ये कॉस्ट कंपैरिजन है ना रिक्वायर्ड, ओके। सो
जैसे मैंने आपको बोला, इन्वेंटरी मुझे मैनेज करना है। ओके, इन्वेंटरी मैनेज करना है तो मटेरियल मैनेजमेंट, ओके, मटेरियल मैनेजमेंट करके मॉड्यूल है, ठीक है, जीसीपी में मुझे किसी चीज का है ना प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन मॉड्यूल। हेलो, ऑडियो प्रॉब्लम। एक मिनट। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो, Yes, sir. हाँ यस यस सर। Yes, sir. यस सर बोलिए। आ रहा है? ओके, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बोला कि इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए इन्वेंटरी मॉड्यूल है अपने पास, प्रोडक्शन प्लानिंग करने के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल है। ओके, आपको प्रोडक्ट आपका आउटपुट सेल करना है, उसके लिए भी मॉड्यूल्स है, आपको कॉस्टिंग करना है, वो भी है, ठीक है। सो बेसिकली एसीपी में मॉड्यूल से ये सब कंट्रोल होता है, ये सब चीजें जो भी एक्टिविटीज होता है इन इंडस्ट्री। ओके, सो दैट एक्टिविटीज, जो भी स्टेप्स होता है, जो भी एक्शंस होते हैं, ओके, दैट इज मैनेज बाय फंक्शनल कंसल्टेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सैप सॉफ्टवेयर में, एसीपी सॉफ्टवेयर में फंक्शनल कंसल्टेंट मैनेज करता है ऑल दिस एक्टिविटीज एट ऑल द स्टेप्स, ठीक है। ऐसा तो बहुत सारा एक्टिविटीज होता है। ओके, बेसिकली बहुत सारा एक्टिविटीज होता है। हमें जो मतलब ये जो अपना जर्नी है, ये अराउंड 45 क्लासेस का है। ओके, सो ड्यूरिंग दिस 45 क्लासेस ना, वी विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक है। अभी मे भी आपको समझेगा नहीं, जस्ट मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, मैं स्क्रीन भी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट आपको ये क्लैरिटी धीरे धीरे आएगा। ओके, कि मतलब फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल क्या है, एज अ फंक्शनल फंक्शनल कंसल्टेंट मुझे करना क्या है। ओके, फंक्शनल कंसल्टेंट बाकी अदर रोल से क्या अलग है इसमें। ओके, ये भी आपको समझेगा, ठीक है। सब सब चीजें समझेंगे अपने को स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। इसमें वेरियस है ना प्रोजेक्ट्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है, रोल आउट प्रोजेक्ट होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है, माइग्रेशन प्रोजेक्ट होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंसेस ऑफ इन, आई मीन क्या है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या अलग है सपोर्ट प्रोजेक्ट से, सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या अलग है माइग्रेशन से, और माइग्रेशन प्रोजेक्ट क्या अलग है इम्प्लीमेंटेशन से। ये सब चीजें हमें समझेगा। ओके, और व्हाट इज अ रोल ऑफ फंक्शनल कंसल्टेंट, मतलब आपको एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट करना क्या है, कैसे वर्किंग होता है, रिक्वायरमेंट आती कैसे है, आपको रिक्वायरमेंट को एड्रेस कैसे करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, पहले कुछ क्लासेस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं उसको समझता नहीं है, मतलब थोड़ा एडजस्ट करने में, मतलब वो कुछ होता है ना, मतलब कभी हम जाते हैं किसी स्किल को सीख स्किल्स को सीखने। ओके, सो कुछ स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होता है हमें, राइट। सो इसी इसमें भी प्रॉब्लम्स होता है, कुछ किसी को समझता नहीं है, मतलब क्या है, क्या अप्रोच है, कैसे सीखेंगे, क्या है, बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है एट द स्टार्ट, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे 1 वीक पास होएगा, 2 वीक पास होगा, 3 वीक पास होगा, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, कि एज अ मुझे कंसल्टेंट करना क्या है। ओके, सो मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपको मतलब कितना कितना आइडिया है एज ए एसीपी कंसल्टेंट। आप मतलब क्या पता है एज ए एसीपी कंसल्टेंट, मतलब आपको क्या करना है।
Hello. बता पाएगा कोई? Hello. हाँ हाँ Currently, I'm using the SAP as an end user in my company. I work in a pharmaceutical company. So I have a little bit of business knowledge on SAP. I'm working on a SAP HANA server. So currently I'm using quality module actually. I have a little knowledge on a material management also, like how to make a PR, how to make a PO, how to book the bill, how to create a vendor. तो एक एंड यूजर का थोड़ा नॉलेज है मुझे, और ये थोड़ा सा पीपी का नॉलेज इसमें है कि मुझे मटेरियल कोड जो बनाने हैं वो पता है, और फिर वो बॉम्ब बनाते हैं बिलिंग ऑफ मटेरियल्स जहाँ पे आपकी पूरे फॉर्मुलेशन की रेसिपी होती है. नो, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑन दैट. So my purpose of doing this course is that taking a end user experience and utilizing it as a, I can develop my skills as a consultant in future. So I can switch over my current role as an end user to a consultant role. That is my target actually for doing this course of STEC IT education of production planning. राइट. सो जैसे आपने कुछ स्टेटमेंट्स अभी बोला, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स एड्रेस करना चाहूंगा. Yes. जैसे इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ, जैसे आपने बोला कि आप क्वालिटी मैनेजमेंट इंटीग्रेशन पे काम करते हुए प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट? नहीं, मैं कोर्स में इंटीग्रेशन पे प्रोडक्शन काम नहीं प्लानिंग करता हूँ. होती मैं आई एम अ बट एंड यूजर. जी समझ गया मैं. बट क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या है, इंटीग्रेशन है क्लोजली विद प्रोडक्शन प्लानिंग. ओके, यस, राइट राइट. तो आप मे बी आप काम करते हो इन क्वालिटी मैनेजमेंट, बट प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत बार आता होगा आपको इन बिटवीन. हाँ हाँ, ठीक है, वो आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा. राइट देन राइट. ओनली यू कैन गो फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट. यस यस, राइट राइट. पर करेक्ट. क्वालिटी मैनेजमेंट का सो कैसा है क्वालिटी कि मैनेजमेंट मॉड्यूल ऐसा है कि हम्म, एक्चुअली इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, हाँ, बहुत राइट. सारे मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेटेड है वो. ठीक है, बहुत बार रोल आपका इन बिटवीन बाकी मॉड्यूल्स के साथ भी आता होगा, राइट? क्योंकि बाकी मॉड्यूल्स के साथ आप कुछ कुछ एक्शंस परफॉर्म करोगे तो आपका क्वालिटी लॉट जनरेट होगा, राइट? बराबर उसी बराबर. लॉट की रिस्पेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, राइट? एंड देन फर्दर स्टेप्स. ठीक है, नहीं, यस. पर सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हर एक बिजनेस प्रोसेस में मटेरियल जो भी मींस रॉ मटेरियल आता है उसका जीआरएन बनता है, तो वो क्वालिटी में जाता है का? व्हाट इज द प्रोसेस जो हर बिजनेसेस में क्वालिटी इंप्लीमेंट होता है कि डायरेक्टली वो प्रोडक्शन में चला जाता है? ऐसा नहीं है, क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. करना अगर आप पड़ता इंस्पेक्शन टाइप मेंटेन करोगे इन दैट पर्टिकुलर क्वालिटी मैनेजमेंट व्यू, तो ही वो एक्टिवेट होगा. है. अच्छा, इफ यू वांट टू डीएक्टिवेट इट, तो वो भी फैसिलिटी है उसमें. उसमें सो एक्टिवेट करना इज एक्चुअली इज ऑप्शनल एक्टिविटी. इट इज अप टू द फर्म कि उसको करना है या करना है नहीं. हेलो हमारे फॉर्म में हेलो तो एक्चुअली वो है ही कंपलसरी. फार्मा में तो विदाउट क्वालिटी नहीं जा सकते आप आगे. हेलो सर, मैं कुछ नहीं, बात कर बहुत सकता सारे. हूँ? हेलो. हाँ, बोलिए बोलिए. वो क्या हो रहा है, आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, अभी इनको हम्म. बेसिक सैप का नॉलेज है, ये क्वालिटी में काम करते हो, क्वालिटी के डाउट्स पूछ रहे हैं. ये क्या है, नहीं, स्टार्टिंग का सेशन सुनो है तो सुनो, अपन है ना. मैं समझ गया आपका हाँ, तो क्वेरी. क्या हो रहा है कि वही बोल रहा हूँ, बहुत सी आप चीजें फ्रीली बाउंस हो रही है. एक्सप्रेस करो. आप हाँ, कि बहुत फ्रीली सी चीजें एक्सप्रेस बाउंस हो करो. रही है, कि क्या करो कि जो अपन सीखेंगे ना तो थोड़ा जीरो से स्टार्ट करते हैं. तो अभी इनको सुनिए, क्वालिटी का रिलेटेड मेरा डाटा बात है. सुनो. आप मेरा बात हाँ. सुनो. हम बेसिक से ही सीखेंगे, जीरो से ही हम्म सीखेंगे. अगर आपका अभी बाउंस भी हो रहा है ना, तो होने दो आप. मैंने जैसा हम्म. आपको बोला ना कि पहले वीक में आपको प्रॉब्लम आएगा, समझेगा नहीं, इन बिटवीन हाँ, ऐसा चीजें होती जाएगी कि हम ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे, है ना? तो ये चीजें होगी. ठीक है, अभी जितना आपको समझता है ना उतना ग्रास्प करने का ट्राई करो. हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली. ठीक है, डोंट वरी कि मैं इधर चले जाऊंगा उधर चले जाऊंगा. वो सही है आपका, 100% करेक्ट हो आप. हम स्टेप वाइज ही जाएंगे, स्टेप वन से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अभी एट वो क्या प्रेजेंट कर मैं रहे आपको हैं कि वो स्क्रीन शेयर क्वालिटी नहीं कर रिलेटेड पा रहा डाटा हूँ, इसलिए डिस्कस करें. मैं खाली ये हाँ वो. क्लैरिटी मुझे आना चाहिए कि आपको कितना पता है, क्या नहीं पता है, हम्म. तो दैट सही मैं सही. आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा प्रॉपरली. और फिर अपना अभी मतलब हो जाएगा. मैं भी टीएमएल में एकदम काम सिंपल करता मैं हूँ. बोलूँ. मैं भी प्रोडक्शन में काम करता हूँ, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग में. तो वहाँ पे हम लोग टी कोड यूज करते हैं, बॉम्ब का टी कोड यूज करते हैं, कंजम्पशन का टी कोड यूज करते हैं, और बुकिंग का टी कोड यूज करते हैं. तो हमारा सिस्टम कैसे रहता है कि स्टोर में से मटेरियल आता है, स्टोर में मटेरियल आने के बाद स्कैन होता है, स्कैन होने के बाद सिस्टम में स्टॉक जनरेट होता है, सिस्टम में स्टॉक जनरेट होने के बाद एसीपी में दिखता है. तो वो बारकोड के थ्रू वो स्टॉक, मतलब जो वो मटेरियल कौन से व्हीकल को लगता है,
उस हिसाब से वो असेंबली होने के बाद व्हीकल लेवल पे असेंबली हो गए तो वहाँ पे व्हीकल बुक हो गया तो सिस्टम में स्टॉक बुक होके सिस्टम से मतलब व्हीकल बुक होने के बाद जो सिस्टम में स्टॉक जनरेट हुआ है वो व्हीकल को बुक होके सिस्टम में से रिलीज होता है। ये हम लोग को थोड़ा सा बेसिक पता है इतना। तो आपका रोल क्या है इसमें फिर एक्चुअली व्हीकल स्टॉक प्रोडक्शन प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अभी मैं रियर एक्सल में काम करता हूँ। रियर एक्सल का एक प्रोडक्ट है व्हीकल का एक्सल वो बनाता हूँ। तो उसमें 800 पार्ट लगते हैं 800 टाटा तो। मोटर्स का। हाँ टाटा मोटर्स तो उसमें 800 पार्ट लगते हैं एक एक एक्सल में। तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कि हमारे पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है और चैसी का प्लान क्या है। उस हिसाब से हम लोग एक्सल का प्लान करते हैं। दो तीन तीन दिन के शेड्यूल में पहला दूसरा तीसरा तो आज कौन सा चैसी का ड्रॉप होने वाला है कल कौन सा होने वाला है परसों कौन सा होने वाला है। उस हिसाब से हम लोग मटेरियल का कैलकुलेशन करते हैं और बायर लोग के साथ बात करते हैं कि अभी चासी को 2 व्हीकल का प्लान ड्रॉप होने वाला है तो व्हीकल को कौन सा मटेरियल लगने वाला है तो अपने पास कितना है और अपने पास और अपने को कितना मंगाना पड़ेगा वो सिस्टम में दिखता है। और कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि सिस्टम में स्टॉक है पर फिजिकल नहीं है ये भी प्रॉब्लम आते हैं बहुत से। तो वहाँ पे कंजम्पशन का इश्यू आता है। ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें कभी कभी डुप्लीकेट बारकोड जनरेट होता है। ये ये थोड़े थोड़े इश्यू हम लोगों ने फेस किए इस हिसाब से हमको। हाँ तो मेरा तो रोल यही है हमारा कि भी मटर ये हम्म जो मेरा हाँ रोल है कि हम लोग को प्लानिंग करना है वहाँ पे। प्लानिंग करने के बाद एज पर बॉम जो बिल्ड ऑफ मटेरियल है उस हिसाब से हम्म एक्सेल डेवलप करना है। एक्सेल एक्सेल डेवलप करके चासी को हम लोग को उसको पोर्ट करना है और वो एक्सेल एज पर मॉडल जाके उसका कंजम्पशन प्रॉपर होना चाहिए सिस्टम में। ये इसका फीडबैक लेना है। राइट। सो हम जब हमारा भी अप्रोच इधर ऐसा ही रहेगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग एक सिनेरियो करेंगे रन। मतलब अज्यूम करेंगे कि एक कंपनी में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट व्हाट एवर द बॉम्ब कंपोनेंट जो आप बोल रहे हो ठीक है मतलब जो भी कंपोनेंट दोज आर रिस्पॉन्सिबल टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट वो हम कंसिडर करेंगे ओके। एंड ऑपरेशंस भी कंसिडर करेंगे ओके कि दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑपरेशंस ओके। और फिर जाके उसका फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा ओके। सो ये सिनेरियो हम भी रन करेंगे इन आवर सिस्टम ओके। सिमिलर सिनेरियो मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो सिंपल सा सिनेरियो है ना। जो भी फार्मा वाले हैं ना उनके लिए ये अलग सा सिनेरियो वगैरह क्योंकि फार्मा इज अ केमिकल इंडस्ट्री ठीक है। तो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो अलग है ठीक है फ्रॉम द फार्मा इंडस्ट्री। सो इसमें है ना इंडस्ट्री टाइप होता है ओके। हेलो। सो इसमें है ना इंडस्ट्री है ना टाइप होता है ओके कि आप कौन से इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो फॉर विच इंडस्ट्री यू आर मैन्युफैक्चरिंग ओके। एंड एज पर द इंडस्ट्री प्रोसेसेस भी चेंज होता है स्टेप्स भी चेंज होता है ट्रांजेक्शन कोड होता है इसमें कुछ वो भी चेंजेस होता है ओके। सो एज पर इंडस्ट्री जो अपना अप्रोच है वो चेंज होता है एज ए कंसल्टेंट ओके। सो इसमें हम क्या करेंगे एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक सिनेरियो रन करेंगे एंड टू एंड ठीक है। एंड टू एंड मतलब जो भी अपने क्लासेस होंगे ओके उसमें वो कंसिडरेशन होगा अपना एक जिसे बोलते हैं ना प्रोजेक्ट टाइप हो जाएगा अपना ओके। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट ओके। सो हम कुछ प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बॉम्ब कंपोनेंट चाहिए जो कंपोनेंट चाहिए मुझे बेसिकली वो मैं कंसीडर करूंगा ओके। और उसको वो पूरा एंड टू एंड साइकिल एक रन करेंगे ठीक है। बट वो एंड टू एंड साइकिल रन करने से पहले 2-3 क्लासेस खाली आपके इस पे होंगे मतलब आपको सर्वर्स पे होंगे ठीक है। आपका काम क्या रहेगा आपका रोल क्या रहेगा ये क्लैरिटी आने के बाद हम आगे जाएंगे ठीक है। बेसिकली मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे वीवो आप म्यूट कर सकते हो क्या। वीवो वीवो 1804 वीवो 1804 आप म्यूट करो म्यूट। आई थिंक ही इज नॉट लिसनिंग। प्लीज रिमूव दिस पर्सन। हेलो वीवो 1804 हाँ यस सर रणवीर। आपका वीडियो ऑन है आप
बंद कर दीजिए और म्यूट भी कर दीजिए, आपका अच्छा बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। सर, वो म्यूट करता हूँ ना तो मेरे को आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, म्यूट मत करिए, बट वीडियो ऑफ रखिए। ओके। हाँ ठीक ठीक सर। ठीक है, तो वो और किसी को क्या पता है, आप शेयर करिए जो भी पता है आपको। अब फॉर एसीपी आपका रोल क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। सर, म- मैं अभी सीधा वर्क करता हूँ। मैं जहाँ हम्म वर्क करता हूँ वहाँ पे एसीपी चलता है ऑलरेडी। हम्म और वहाँ पे क्या है ना, मेरे को मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, जैसे मतलब उसमें से स्टॉक निकालना, स्टॉक हम्म देखना, अपना हम्म स्टॉक कितना आउट हुआ है वो देखना, हम्म प्रोडक्शन हम्म रिपोर्ट निकालना, बस इतना यहाँ तक ही आता है। बाकी इसका हम्म, और डिटेल जानने के लिए मैंने इसमें अपना एडमिशन लिया हूँ। राइट। देखिए, इसमें ना एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। ओके। हाँ हाँ फ्रंट एंड मतलब आप अभी जैसे बोल रहे हो, स्टॉक में इस स्टोरेज लोकेशन से उधर मूव करता हूँ, स्टॉक में ना रिमूव करता हूँ, एडिशन करता हूँ। ठीक है, ये हो गया फ्रंट एंड आपका, हाँ हाँ, ये सब अच्छा। एक्टिविटी होगी। हम्म, बैक एंड भी है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट भी है, जी कंट्रोल सर। पार्ट भी। जैसे जी इसमें सर। कुछ कंट्रोल्स आपको करना है पुट। ओके। सो ये सब हम्म, आता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कुछ सेटिंग्स करना है, कुछ ऑटोमेटिक करना है। ओके। हाँ हाँ, सो इस ये आता है सब कस्टमाइजेशन पार्ट में। ओके। सो इसमें पार्ट्स अच्छा। होता है हम्म, बेसिकली। ठीक है। हाँ हाँ सो ये पार्ट्स हम सीखेंगे। ठीक है, आराम से, मतलब आराम आराम से, मतलब कैसा काम है, कॉन्फ़िगरेशन हाँ में क्या होता है, हाँ हाँ, बैकएंड में क्या होता है आपका, क्या सेटिंग्स है, क्या सेटिंग से क्या चेंजेस होते हैं, हम्म, बॉम्ब में अगर मैं कुछ सेटिंग करूंगा तो क्या चेंजेस होगा। हाँ हाँ, एक्चुअली जो भी कंट्रोल्स है इन, ठीक है, एसीपी, वो हम्म, पूरे तो सीख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे कंट्रोल्स है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हाँ हाँ कंट्रोल्स है, हाँ, कॉन्फ़िगरेशंस है। वो ओके। हाँ वो तो। बट हम ट्राई करेंगे, विल ट्राई कि उसमें से मैक्सिमम आपका अचीव हो जाए। मतलब सपोज 500 है तो मैं ट्राई करूंगा कि ऑलमोस्ट 300 to 400 मेरा कवर हो जाए। हम्म, बाकी जो ऐसे तो मैं कवर नहीं पीपी। होगा वो इतना हाँ हाँ, वो एक्चुअली सिंपल है, इतना आप भी कर सकते हो वो कवर। बट जो हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, कंट्रोल है, वो हम एज फार एज पॉसिबल कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। यस, बोलो। जी सर, ओके। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, मैं सचिन बोल रहा हूँ। ओके। एक्चुअली मेरा जो रोल है, मैं प्रोडक्शन में हूँ मैं, और मेरा डेली वर्क जो होता है एसएपी में वैसे एंड यूजर ही है। प्रोडक्शन हम्म ऑर्डर क्रिएशन, कंफर्मेशन, देन वी गो, और देन हम्म लास्ट में स्टॉक काउंटिंग, ये सब मेरा रोल है। और हम्म ये मुझे कोर्स ऐसा, मतलब ये जो अपना प्लांट कोड से लेके कैसे इसको सब सेटअप करना है, कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए मैंने ये ज्वाइन किया है। राइट 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 राइट, तो करेक्ट बेसिकली करेक्ट। मैं बहुत सारे टी कोड्स मतलब वर्क करता हूँ डेली डेली, स्टॉक काउंटिंग के ऊपर, MB51, MB52, बहुत सारे टी कोड्स है जो हम लोग यूज करते हैं। जो बॉम्ब क्रिएशन में भी मेरा मतलब सपोर्ट रहता है, वो हमारी पी टीम को, तो वो नहीं, बॉम्ब आप कैसे क्रिएट करना है। इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्या है आपका? हमारा एक्चुअली केबल केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बट उसमें मैं पीवीसी कंपाउंडिंग में वर्क करता हूँ, जो अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन। पीवीसी कंपाउंडिंग में मेरा केमिकल बैकग्राउंड है, बी केमिकल हुआ है मेरा। और अभी मेरा अराउंड 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। राइट। एक्चुअली जो लास्ट बैच थे ना, लास्ट बैच में भी आपके जैसी एक स्टूडेंट है, उनको भी अराउंड 18 इयर्स का एक्सपीरियंस ही था। हम्म। His name पाटिल सर नेम था उनका। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे, मतलब ये थे। एक्चुअली उनका स्टील इंडस्ट्री में था। हाँ हाँ हाँ, तो आपको मतलब एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट अभी स्विच करना है, राइट? जी एंड यूजर हाँ, मैं का। एक्चुअली प्रोडक्शन में हूँ, एंड यूजर में करता हूँ मैं, बट आई वांट टू बी अ कंसल्टेंट, और राइट मुझे स्विच करना है फिर। राइट राइट। देखिए, आपको, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग एक्सपीरियंस। ठीक है, और हम्म। वो भी प्रोडक्शन में है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इट इज एडेड एडवांटेज। ओके। मतलब ऐसा मत समझिए कि मैंने 5 साल में मुझे प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है तो मेरा 5 साल तो चला गया, अभी क्या करूँ मैं, ऐसा नहीं है। ये एडेड एडवांटेज है आपको सबको। ठीक है, क्योंकि आपका
मॉड्यूल ऐसा है कि इसमें कॉन्सेप्चुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मतलब इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मैं मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, क्लाइंट के साथ आपका एक कॉल शेड्यूल होता है, ओके। क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट उसको है ना विजुअलाइज करना, कॉन्सेप्चुअलाइज करना, इमेजिन करना, वो बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो ऐसा होता है कि उसने 15 ईयर्स काम कर चुका है ऑलरेडी इन हिज इंडस्ट्री, ओके, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उसको बहुत सारा इमेजिनेशन ऑलरेडी, मतलब उसको कमांड रहता है, ओके। मतलब उसका जो भी कॉन्सेप्ट है, उसका जो भी स्टेप्स है, जो करता है, एक्टिविटीज करता है इन इंडस्ट्री, उस पे सब उसका कमांड होता है, ओके। बट हमें वो इमेजिन करना है, ठीक है। क्लाइंट बेसिकली दो चीजों के लिए आता है। एक तो वो आता है इम्प्रूवमेंट के लिए, ओके, कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वो बहुत साल से सैप सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, ओके, एंड आपके पास आ रहा है फॉर द इम्प्रूवमेंट्स, कि अभी मुझे भाई इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। सेकंड ऐसा है कि क्लाइंट ने जस्ट अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है सैप सॉफ्टवेयर, वो आपके पास आ रहा है समझाने के लिए कि भाई मुझे समझा के दे कि ये प्रोसेस कैसा करूं मैं इन अ सैप सॉफ्टवेयर, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर में मैं पर्टिकुलर प्रोसेस कैसा करूं, स्टेप्स कैसे करूं, परफॉर्म कॉन्फ़िगर कैसे करूं, ठीक है, इसके लिए आता है। इसमें से जो सर मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है चीज, सर एक्चुअली। हेलो। जस्ट मिनट सची ना, हाँ जस्ट मैं ओके। कंप्लीट तो फिर आपको क्वेश्चन, ठीक है। ओके। तो इसमें जो पहला सिनेरियो जो मैंने बोला कि आपका क्लाइंट के पास एसीपी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है सिंस लास्ट 15 ईयर्स, अभी वो आपके पास आ रहा है इम्प्रूवमेंट के लिए। सो दोज आर द चैलेंजिंग पार्ट इन SAP सॉफ्टवेयर। एसीपी में वो चैलेंजिंग पार्ट कि आपका क्लाइंट को 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ऑलरेडी 15 ईयर्स वो एसीपी पे काम कर ओके। चुका, नाउ ही वांट्स इम्प्रूवमेंट। सो यहाँ पे आपका आएगा रियल चैलेंज एज अ कंसल्टेंट, फंक्शनल कंसल्टेंट, ठीक है। तो देखिए, मैं सच बोलता था कि ये जो कोर्स आप कर रहे हो ना, ये पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं है। मतलब आप ये कोर्स कर लोगे तो फंक्शनल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये हम्म। आपका जो, इसमें आपको आपका खुद का हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। आपको, आपका जो मैंने बोला, आप कंसेप्चुअलाइज कर पाओगे या कर नहीं पाओगे, कितना कर पाओगे, उस वो एक्सटेंड पे आपको डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे फंक्शनल कंसल्टेंट बन पाओगे, ठीक है। मैं मेरा हम्म। हार्ड वर्क पुट करूंगा, मैं मेरे साइड से पूरा 100% वो मेरा इनपुट रहेगा, बट इट इज अप टू यू कि आपको फंक्शनल कंसल्टेंट आप कैसे बनोगे आगे जाके इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आप देखिए, आप अभी स्टूडेंट भी ज्यादा, वो लास्ट क्लास में एक्चुअली 5 ही स्टूडेंट थे, तो हर एक स्टूडेंट के साथ बहुत कनेक्टिविटी अच्छा था। मतलब हर एक स्टूडेंट के साथ हम कनेक्ट करके उसको क्या प्रॉब्लम है, वो किस में अच्छा है, किस में अच्छा नहीं है, वो सब मुझे पता था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, सो ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा नहीं, करूंगा, बट हम बट आपको भी उतना हार्डवर्क अभी पुट करना पड़ेगा। मेरे साथ कम्युनिकेशन करते रहना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज में इशू आता है ना, तो ऐसा शाय वो मत करना। अगर आप शाय हो हम्म। तो वो छोड़ दो, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस करो इन बिटवीन। जैसे सुमित ने बोला कि हाँ वो ऑफ टॉपिक हो जाता है, होता है कभी कभी ऐसे, वो चीज थोड़ा इग्नोर करने का ट्राई करो, ठीक है, वो होगा। ऐसा पूरा प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड जाना थोड़ा कठिन है, मतलब, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आएंगे, ओके, बट वो कुछ कुछ चीजें इग्नोर कर सकते हो, ओके, ठीक है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, सचिन ना? सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन एक ही था। जैसे अभी कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम्म, हमारा मतलब इसमें नॉलेज तो आ जाएगा, बट हम लोग को जो अपॉर्चुनिटी मतलब मिल सकता है, तो वो एज अ एक्सपीरियंस काउंट होगा या एज अ फ्रेशर ही काउंट होगा? अम्म, देखिए, ये चीजें है ना, हम कॉल पे डिस्कस नहीं कर सकते। आप मेरे साथ है ना सेपरेटली कनेक्ट कीजिए कि आपका रिज्यूमे कैसा बनाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें है ना, देखिए, कौन कौन फ्रेशर है यहाँ पे, कोई है बंदा जो फ्रेशर है, जो काम ही नहीं किया है पास्ट में? मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं, बाकी लोग? मैं भी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। अच्छा, सब लोग एक्सपीरियंस है, ओके। ऑलमोस्ट सब लोग एक्सपीरियंस, वो अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब ऑलमोस्ट बेसिक नॉलेज है सर। 2 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है सबको, है ना? हाँ यस मैक्सिमम सर। 2 years चलता है।
और हाँ 16 यस में से अराउंड मैक्सिमम 10 से ज्यादा तो एसीपी पे काम कर रहे हैं अभी। ठीक है। हाँ यस सर। यस यस। हाँ करेक्ट। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है। मतलब आपका जो, यस देखिए सर मेरा भी, आपको पता होगा भारत फोर्ज, पता है आपको भारत फोर्ज कंपनी? हाँ तो यस यस मैं है ना। वहाँ पे 2014 हम्म। में का पास आउट हूँ। मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ था। तो वहाँ पे जीटी करके था, फिर मैंने कंपनी स्विच किया। अभी का कंपनी में बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम कॉन्फिडेंशियल रीजन। ओके। सो वहां से मैंने स्विच किया है। मतलब मैं भी प्रोडक्शन में था, मैंने 5.5 years काम किया। वहां से और एक कंपनी में स्विच हुआ, उसके बाद और एक, फिर एक छोटी कंपनी, आईटी कंपनी से जॉब किया, और फिर बड़ी कंपनी में अभी अच्छा पोस्ट पे भी हूँ। ठीक है। तो अभी देखिए बेसिकली क्या है, ये जो जॉब है किसी भी फंक्शनल कंसल्टेंट, ये को बहुत हाई पेइंग जॉब है। ओके। और बहुत अच्छा जॉब है। मतलब अभी जो आप कर रहे हो उससे तो अच्छा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो, जो अभी काम कर रहे हो आप, वो कैसा काम है कि आपको वहां पे चैलेंजेस कम आता है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ चैलेंज आता ही नहीं है, चैलेंज आता है, बट वही वही काम करना पड़ता है। करेक्ट ना, अगर मैं गलत हूँ तो? नहीं नहीं सर, राइट राइट राइट। करेक्ट। हर मोस्ट ऑफ द हर आपको दिन जाके फेस करना हर दिन जाके वही वही। काम करना, उसमें कुछ हाँ। नया कुछ नहीं। मतलब 80% पुराना काम है और 10% 20% हम्म। खाली नया काम आता है। बस नहीं तो रोज जाके वही करना है, वही करना है, वही करना है, रिपीट किक रिपीट नहीं रिपीट। मिलती इसमें, किक नहीं हाँ मिलती है। करेक्ट। हाँ। जो अभी और आप काम कर रहे हो। हम्म। अभी सैप में तो कैसे टी कोड नए नए सीखने मिलेंगे, हर रोज नया चीज आएगा, क्योंकि उसमें ये इतना डाटा वास्ट है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। राइट राइट, वो बहुत 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 ज्यादा वास्ट है। और अभी आपका मेंटेलिटी में मेरे जितना समझ में आ रहा है वो ऐसा है कि आप, आपको फ्रंट एंड ज्यादा पता है। आप है ना फ्रंट एंड के हिसाब से सोच रहे हो, मतलब आप जो काम करते हो ना अभी उसके हिसाब से सोच रहे हो, बट एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट बहुत अलग सा काम है। ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि अभी आप जो कर रहे हो वो कुछ भी काम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू। ठीक है। बट इससे भी अलग एक ये है, वर्ल्ड है। ओके। फॉर किसी भी कंसल्टेंट, तो वो समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है। वो ऐसे नहीं समझेगा, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है। पहले तो हम है ना फ्रंट एंड समझेंगे कि फ्रंट एंड क्या है। फ्रंट एंड पूरा गो थ्रू करेंगे, एंड टू एंड। एंड टू एंड मीनिंग कि फ्रंट एंड अगर जिसको समझ में आता है ना, वही कंसल्टेंट बन सकता है। ठीक है। बॉम जो है, बॉम जिसको पूरा समझ में आ जाएगा, बॉम का पूरा फंक्शनलिटी समझ में आ जाएगा, फ्रंट एंड में क्या है, वो बैक एंड इजीली कॉन्फ़िगर कर लेगा। ठीक है। एसीपी में दो चीजें होती है, एक है कि आपको एग्जिस्टिंग जो फंक्शनैलिटी है वो पता रहना चाहिए, और वो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी से मैं क्या अचीव कर सकता हूँ वो भी पता रहना चाहिए। एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी क्या है, मेरा बॉम्ब, सपोज मेरा बॉम्ब है। अभी बॉम्ब क्या है यहाँ पे किसी को होगा नहीं पता, बट ठीक है अभी छोड़ दो, इग्नोर मारो जस्ट। ये वाला जो क्लास है ना वो ऊपर से जाता है तो होने दो। ठीक है। अगली क्लास से हम इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। बिल्ड ऑफ सो जो मटेरियल। मैंने अभी बोला बॉम्ब है। ओके। जो मैंने अभी बोला बॉम्ब है। ओके। सो बॉम्ब का फंक्शनलिटी तो पता होना ही चाहिए कि बॉम्ब में फंक्शनलिटी क्या है, बट ये भी पता होना चाहिए कि मैं भैया बॉम्ब से क्या अचीव कर सकता हूँ। जो चीजें मैं बॉम्ब से अचीव नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं वो चीजें कॉन्फ़िगरेशन से अचीव कर सकता हूँ? अगर मैं किसी चीज को कॉन्फ़िगरेशन से अचीव नहीं कर सकता हूँ, तो क्या मैं वो कस्टमाइजेशन से अचीव कर सकता हूँ? कस्टमाइजेशन मतलब वो कोडिंग वगैरह, एडैप कोडर जो मैंने बोला ना आपको, वो वाला। ठीक है। तो बेसिकली ये जो एसीपी है इसमें तीन चीजें कर सकते हो। एक मतलब आप एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को कर सकते हो यूज। ओके। दूसरा मतलब आप एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी को कॉन्फ़िगर करके उसमें कंट्रोल्स भी डाल सकते हो, या फिर एडिट फंक्शनलिटी भी डाल सकते हो। और तीसरा मतलब आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब जो चीजें है ही नहीं एसीपी में वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है। कस्टमाइजेशन कोडिंग करके। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये जो कोर्स है इसमें आप सीखने वाले हो फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड तो पता ही है आपको, बैक एंड मतलब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। ठीक है। और कस्टमाइजेशन पार्ट इसमें है नहीं इंक्लूड, वो पूरा अलग सा चीज है। वो कैसे करते हैं क्या करते हैं, अगर आपको सीखना है तो मेरे से अलग से कनेक्ट कर सकते हो। बट ये दो, ये जो क्लास होने वाला है, कोर्स होने वाला है, इसमें आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड सीखने वाले हो। ठीक है। अभी मैं फ्रंट एंड बैक एंड बोल रहा हूँ, जब मैं एसीपी में जाऊंगा तो आपको प्रॉपरली समझेगा कि उसको बोलते क्या है। ठीक है। बहुत से लोगों को होगा पता, दैट इज एडेड एडवांटेज अगेन। ठीक है। बट हम उसको इन डेप्थ सीखेंगे कि उसको बोला क्या जाता है, आप क्या बोलते हो, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके। वो सब कंसेप्चुअलाइज वो सब हम सीखेंगे, कंसेप्चुअल इसमें सीखेंगे।
जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो, आपकी इंडस्ट्री को भी उसमें फिट कर सकते हो। जैसे मैं एक सिनेरियो करूंगा रन, ठीक है, जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो में रन करूंगा, बट कोई बंदा यहाँ पे फॉर फार्मा से है, ठीक है, उसको फार्मा का नॉलेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो मैं सिनेरियो रन कर रहा हूँ, तो वो बंदा मेरा सिनेरियो भी रेफर कर सकता है, वो खुद का भी बना सकता है, ठीक है, वो फ्री है। आप वो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोला है वही करना है, ऐसा नहीं। मैं आपको बोलूंगा बट आपको है ना ऐसा नहीं करना है कि मैं आगे जा रहा हूँ आप पीछे जा रहे हो, बहुत मैं पीछे जा रहा हूँ आप आगे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, अपने को साथ साथ चलना है, ठीक है। पैरेलली आप आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से आपको जो सुटेबल है वो सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि सबने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, किया है ना which one? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वो सिस्टम में आपके? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है हमें। हाँ नहीं मिले। क्यों मतलब सॉफ्टवेयर क्यों नहीं किया? नहीं, उन्होंने बोला था कि जब आपका क्लास चालू होगा तो आपको ट्रेनर बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है कैसे और करना है, सर्वर का हाँ। एक्सेस करना मिलेगा। यस करेक्ट। ट्रेनर का काम नहीं, आई थिंक कविता बताएंगे, ऐसा होगा शायद। उन्होंने बोला कि आईडी आपको तीन लेक्चर्स के बाद मिलेंगे, सैप हाँ, आईडी। सेकंड और थर्ड लेक्चर में मिलेगा। हाँ, ओके 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 ओके। अभी तक यही कम्युनिकेशन है हमारे पास। पर अभी इंस्टॉल तक तो कुछ करके भी फिर आईडी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा है। तो हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। इंस्टॉल करके क्या मिलेगा, आईडी भी चाहिए ना। मैं तो पूछा था नहीं, कि इंस्टॉल मुझे कैसे करना है, उसका आपका भी नहीं कुछ पता। सॉफ्टवेयर का एक्सी फाइल वगैरह चाहिए ना हमें, कैसे इंस्टॉल करेंगे। राइट राइट, इसका एक फाइल होगा, उसमें है ना प्रोसीजर भी होता है सब, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, वो वो तो आप। उन्होंने ड्राइव में डाला है, बट एक्चुअल में इंस्टॉल करके जो आईडी पासवर्ड चाहिए वो तो शेयर करना चाहिए ना, उसके बाद ही तो हम लोग वो कर नहीं सकते है, हैं। वो नहीं है, बराबर है। उसके बाद मतलब 3 वीक के बाद, क्योंकि अपना सैटरडे संडे होता है 1 वीक के बाद, सॉरी, नेक्स्ट सैटरडे जब क्लास होगा तो संडे को मिलेगा, ऐसा ना? 3 लेक्चर्स के बाद। नहीं, हाँ, थ्री सेकंड और लेक्चर थर्ड लेक्चर तो बोला ज्यादा था, मे भी कल मिलना चाहिए ऐसे देखा दो जाए। लेक्चर के बाद। 2 नहीं, दो लेक्चर के बाद लेक्चर के बाद मतलब, बोला है। एक ठीक है ना, फर्स्ट एक लेक्चर संडे पे का नहीं क्लास है होगा। कल का। हम्म। कल के क्लास के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं वही ये करूंगा रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लो, ठीक है, बिकॉज वो इंटरेक्शन बढ़ेगा। नहीं, वो भी एक्चुअल में है प्रॉब्लम और क्या है, 3 मंथ का ही सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली वो 4 मंथ हम्म बोले थे, वो 3 मंथ का ही है। समझो हम्म जो कोर्स है अपना जो कंप्लीट नहीं होगा तो फिर हम लोग का ही लॉस है ना वो। पहले ते गायत्री आले का ते देखो, विचारत होतो. अभी क्या है ना, अभी क्या है, ये वो मैंने आपको क्वेश्चन किया था रीड, बट मैं वो आंसर नहीं करूंगा तो मतलब वो ग्रुप में नहीं करूंगा, बट इधर बोलता हूँ आपको कि देखो क्या है, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, ये आपका 3 मंथ्स में कंप्लीट नहीं होगा। कोर्स छोड़ दो, आप आप खुद ही नहीं कर पाओगे 3 मंथ्स में, एज ए एसीपी कंसल्टेंट आप बन ही नहीं पाओगे इन 3 मंथ, हो ही नहीं सकता। मैंने नहीं, वो आपको तो बोला करेक्ट है। देखो। हम्म वो तो करेक्ट है, वो तो 3 मंथ में नहीं होगा। बट हम्म जब वो जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक तो एटलीस्ट कंप्लीट तो हो सकता है ना जो है। वो सीखने का है, देखिए, वो तो 3 मंथ के ऊपर ही लेना ही हम लोग को तो पर्सनली बाय करना पड़ेगा। बट अभी स्टार्ट किए, आज का लेक्चर तो फर्स्ट है, तो एटलीस्ट उन्होंने आईडी पासवर्ड तो देना चाहिए ना सैप का। नहीं नहीं, वो आप तो थोड़ा कुछ भी नहीं, वो कंफ्यूज हो। तो सेकंड अभी क्या हो सेकंड रहा है, और थर्ड लेक्चर में बोल रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, ये जो हम्म 3 मंथ्स का जो ये है ना सब्सक्रिप्शन, ये खाली वो हम्म। एस्पोराना सॉफ्टवेयर के लिए, ओके। मैं सजेस्ट ओके। करूंगा आपको, अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम होता होगा तो वट एवर, तो आप क्या कर सकते हो, आफ्टर 3 मंथ्स एक 600 रुपये का कुछ मतलब ईसीसी मिलता है, छह हम्म सौ रुपये फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, हम्म। वो आप खरीद लो, खत्म बात। और तो हाना और उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें क्या डिफरेंस है, मेरा भी वही क्वेश्चन था। देखो, एस फोर आना और ईसीसी में ना, जो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, मतलब सब सेम है, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली है, बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप ईसीसी पे काम ही नहीं कर पाओ। सिग्निफिकेंट मतलब वो जो भी चेंजेस है वो तो हम सीखेंगे ऑब्वियसली, जैसे जैसे आगे जाएंगे हम हम्म सीखेंगे क्या क्या चेंज। अभी मैं बोलूंगा तो आपको नहीं समझेगा ना, मैं अभी आपको कुछ बोल दूंगा ये चेंजेस है, फिर आप कैसे समझोगे, आपको पता ही नहीं है। सिस्टम और क्या जैसे है वही पता नहीं। और अभी सभी कंपनी में हाना हो गया है क्या अभी इंटीग्रेशन प्रोसेस चल रहा है? वो एसीपी ने आई थिंक कुछ मैंडेटरी किया है कि इतना इतना साल तक ये हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ 2026 दिया है मैंडेटरी ना या किया 27 दिया है। है, हाँ, उसके पहले वो था। कन्वर्ट 27 दिया है गेस, तो वो कन्वर्जन अभी चल रहा है, क्योंकि इसका खुद का क्लाउड है ना, तो इसको सस्ता पड़ता है। नहीं, पर पहले वो ओरेकल का क्लाउड था। अभी हम लोग S4 हाना का कोर्स करेंगे और इन फ्यूचर अपन एस जॉब फोर कोई आना इज अ अप्लाई। क्लाउड, एस फोर आना इज अ क्लाउड क्लाउड। इज अ सर्वर
पर हाँ उसका अभी क्रॉस करेंगे, बट हर एक इंडस्ट्री में वो रहेगा क्या? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री एस4 में कन्वर्ट हो रहा है, हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक वो पहले इसके 2025 कुछ था, बट अभी वो एक्सटेंड कर दिया है उन्होंने। आई 26 या थिंक नेक्स्ट 3 to 5 years में सब एस4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, आई गेस। ओके। डिफरेंसेस है ऑब्वियसली, कुछ एडेड फंक्शनैलिटी है इन एस4 कुछ फंक्शनैलिटी ऐसा है जो ईसीसी में था बट अभी ऑब्सोल्यूट हो गया है इन एस4 मतलब अभी नहीं चलता है, ठीक है। तो अभी जो एआई का कुछ इफेक्ट होगा क्या फंक्शन, जो कंसल्टेंट जॉब्स के लिए कुछ एआई इंट्रोड्यूस हो जाएगा सैप? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाकी ये एसीपी ऐसा जॉब है, वो चलते ही रहेगा, वो आपको समझेगा बराबर जैसे अभी कोर्स बहुत होता है। न्यूज में आ रहा है कि एआई सब जॉब्स ले रहा है ना, तो इसके लिए पूछो। हमारी एआई कंपनी एस4 एआई एसीपी में में कुछ एसएपी नहीं आना ही चल होगा। रहा है अभी। कौन बोल रहा है? मैं गोविंद बोल रहा हूँ, कह रहा हमारी कंपनी में अभी एसएपी आना ही चल रहा है। हम्म हाँ ठीक है ना। बाकी जैसे कारगिल में। मैंने बोला ना, तो एसीपी एस4 में कन्वर्ट हो रहे सब लोग। माइग्रेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब उनका ईसीसी था 6.0, अभी ए- दे आर चेंजिंग इट टू एस4 माइग्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, अपडेटिंग, ओके। तो एस4 में ऑब्वियसली कुछ एडेड एडवांटेज है, कुछ एडेड फंक्शनैलिटी है जो हम सीखेंगे। मतलब क्या ईसीसी में था, अभी क्या चेंजेस हुए, बट ऐसा कंप्लीटली है नहीं कि आप ईसीसी पे अगर काम करते हो तो एस4 तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं, इतना नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं चेंजेस। मतलब सिग्निफिकेंट है बाई कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी को एडेड एडवांटेज मिल रहा है ना, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज है, ओके। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ये नहीं है फर्क। आपने अगर सपोज ये 5000 का आपको चाहिए नहीं, आप ईसीसी पे हो जाओ शिफ्ट, बेटर रहेगा इस पर आना फिर, बट ईसीसी पे शिफ्ट हो जाओ फिर। ईसीसी में हमारा प्रैक्टिस कर सकते हैं मतलब हम आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। हाँ आप 3 months आपका हो जाए, आप ईसीसी पे कर लो। अगर आपको कांटेक्ट चाहिए तो मैं शेयर कर लूंगा, कर दूंगा। ठीक है। हाँ बट ये वो ग्लोबल उसका दोनों का भी सर्टिफिकेशन। कांटेक्ट नंबर गारंटी शेयर कर वगैरह। दीजिए। वो 600 हाँ रुपीज का है क्या? 600 रुपीज फॉर 3 months। उस ज्यादा लोगे तो आपको और कम पड़ेगा, ऐसा रहता है। तो वो ठीक है ना, अपने प्रैक्टिस के लिए वो ले हाँ सकते हैं आफ्टर कोर्स प्रैक्टिस कंप्लीशन। के लिए आपको ले सकते हो, अभी 3 months के लिए आपको ये इस पर कर लो, मतलब वो इनिशियली ये तो, हाँ ये तो अभी 6,000 इंस्टीट्यूट से फ्री मिलेगा हमको, बट आफ्टर हाँ और उसके हाँ बाद खाना हम का लोग फ्री है वो ना। ले सकते हैं सीसी वाला। वो नहीं, फिर हाँ। और एक लास्ट क्वेश्चन और था मेरे यहाँ से कि ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है जॉब के एक लिए? लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं ये और एक बोलता हूँ, ये जो बात मैंने बताया वो बताना मत किसी को खाली, ठीक है, कि ये सिर्फ टिप्पणी ने ऐसा सब और ट्राई करके आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है पर। नहीं चलेगा। वो कोई नहीं देखता है, बट ये बात आप जाके वो explicitly उनको वो मत हम ही बोलना कि देखेंगे। मैंने ऐसा बताया। हाँ, अरे हम वो लोग को कुछ फर्क नहीं है, हम लोग अपना फायदा ही हो रहा है ना। हाँ हाँ वो बोलेंगे यार तू स्टूडेंट को ऐसा क्यों बता, मैं जेन्युइन बताता हूँ। नहीं, देखिए बराबर मेरा है ना, अच्छा। मेरा जो है ना वो अच्छा जॉब है, मेरा हाई पेइंग जॉब है, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इंस्टीट्यूट में रहूँ या किसी और में रहूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ। तो मैं जेन्युइन फीडबैक रहेगा मेरे से, जेन्युइन चीजें रहेगी, ठीक है। ऐसा कुछ ये नहीं है अपना, ठीक है, कुछ फायदा हो रहा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, ठीक है। वो 600 वाले में मेरा कुछ ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब किसी में भी कुछ नहीं है, मेरा जेन्युइन रहेगा सब जो भी रहेगा, ओके। बट मेरा ठीक एक है। रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं आपको जो जेन्युइनली बोलता हूँ ना, वो जाके किसी को बोल मत देना खाली, ठीक है। वो ठीक। मेरे को फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, ओके। राइट, राइट। तो अभी क्या बोल रहे थे आप, ग्लोबल सर्टिफिकेशन, एक ओके। हाँ, देखिए ग्लोबल ग्लोबल सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का क्या है, अभी इसमें 2 सर्टिफिकेशन होने वाले, एक होने वाला एसटेक इंस्टीट्यूट से, एक्चुअली रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, स्पीकवेल का है वगैरह वगैरह, ये एक चीजें होगी, ठीक है। दूसरी एक चीज होती है, एक ये होता है एसीपी का सर्टिफिकेशन, ओके। एसीपी का सर्टिफिकेशन कुछ साल पहले ऐसा था कि अगर आप कुछ साल पहले एसीपी का सर्टिफिकेशन करते थे, 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले, तो वो वैलिड रहता था कि आप फुल टाइम वैलिड रहता था वो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है, एसीपी का सर्टिफिकेशन, देखो अभी समझो, ठीक है, मैं पहले पूरा कंप्लीट करता हूँ, बाद में बोलना, थोड़ा क्लास थोड़ा एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो सॉरी या जिसको जाना है जा सकते हो, बट जिसको ठीक है। सब कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं कंटिन्यू है, बता दीजिए। सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन पहले ऐसा था कि आप फुल टाइम वैलिड रहता था 5 साल पहले। अभी उन्होंने ऐसा किया है कि अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो तो 1 साल के लिए वैलिड है, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। इसमें 2 वर्जन है, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के लिए 2022 का भी कोर्स कर सकते हो, 2023 का भी कर सकते हो। 2022 का कोर्स कुछ 20,000 समथिंग में मिलता है,
2023 का कोर्स 23,000 में मिलता है। आई थिंक दोनों कोर्स का शायद प्राइस सेम भी हो सकता है। ओके, इसमें एसीपी का एक साइट है। ओके, एसीपी साइट में जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको आईडी बनाना पड़ता है आपका, यूनिवर्सल आईडी बोलते हैं उसको। यूनिवर्सल आईडी बनने के बाद आप वो स्टेप्स देख सकते हो। मैं भी आपको शेयर कर लूंगा कहाँ कहाँ से मैंने फेच किया था। इसको एग्जाम को पास करने का वे ऐसा है कि 85 मार्क्स का कुछ आपका एग्जाम होता है। ओके, जीटी क्वेश्चंस उसमें आते हैं। उसका एक क्वेश्चन सेट है ना, ऑलरेडी आप खरीद सकते हो। मतलब कुछ साइट्स है आपका, वो साइट्स भी मैं शेयर कर लूंगा। आप है ना इंडिविजुअल मुझे ये करना, ठीक है, पिंग वो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ भी मत करना, ठीक है। ये सब ठीक इंडिविजुअल है, का है, ये सब ये ठीक है, ठीक है। इंस्टीट्यूट से इसका कुछ रिलेशन नहीं है। ओके, जिसको जरूरत है वो तो कर लेगा इंडिविजुअल है क्या? नहीं, जिसको जो आप एक काम कर दीजिए, नहीं टेक्स्ट मैसेज डाल दे तो वही नंबर पे हम लोग इंडिविजुअल आपको मैसेज कर देंगे। हाँ, मेरा सर नंबर है ना, इंडिविजुअल से ऑलरेडी अच्छा मेरा एक काम व्हाट्सएप कर में दे, है, 7666 से स्टार्ट हो रहा है मेरा फोन नंबर, देखो इंडिविजुअल से व्हाट्सएप। अच्छा सर एक काम करेंगे, एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाएंगे। तो उसमें क्या होता है, बराबर सबका है। कम्युनिकेशन होगा, तो सबको कम्युनिकेशन होगा कि सबके फायदे के लिए हो। कोई बंदा चलेगा बोलेगा चलेगा, हाँ सर एक काम ये करो क्वेश्चन आप, लिस्ट मिला तो सबको मिलेगा। कोई भी एक हाँ, ये कर लो व्हाट्सएप ग्रुप अनऑफिशियल, और उसमें डाल हाँ दो। हाँ, अनऑफिशियल ग्रुप बनाएंगे और उसमें यस सबको सर। ऐड करेंगे। ठीक चलेगा, है। अच्छा आइडिया। तो हाँ, तो उसमें क्या है, सबके कुछ लिए साइट बेनिफिट से होगा। हाँ वो भी और चलेगा, वो भी तो चलेगा। वही मिस हाँ आउट हाँ होना जैसे नहीं चाहिए ना, कैसा होता है। तो कुछ साइट्स है, तो वो जो उसमें जाके आप वो क्वेश्चन सेट खरीद सकते हो। अभी इसमें एक फर्क क्या होता है, 80 का 80 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आएगा आपके जेसीपी कोर्स सर्टिफिकेशन में, जो एग्जाम होगा फाइनल वाला, सेम टू सेम आएगा। खाली ऑप्शन है ना ऊपर नीचे होंगे, ए का बी हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएगा। बट तो क्वेश्चन सेट एमसीक्यू होता पूरा है का क्या? पूरा एमसीक्यू होता है ना, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू, क्वेश्चन ही होता है। यस यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। और उसका क्वेश्चन सेट ऑलरेडी वो है ना रिलीज हो जाता है ऑन वेबसाइट्स। ओके। वो खरीदना पड़ता है, वजह से आपको 6000 रुपीज का मिलेगा क्वेश्चन सेट। तो वो आप इन कंबाइन करके भी खरीद सकते हो। पर आपको तो बीस जॉब के हजार लिए वो का जरूरी है क्या, एसीपी सर्टिफिकेट? बेटर रहेगा ना, आप सर्टिफाइड कंसल्टेंट रहोगे। देखो मेरे जो ये है मैनेजर है, वो अभी तक सर्टिफाइड ही नहीं है आदमी, बट वो चला गया ना उधर तक। मैं भी चला गया, मैंने अभी 6 मंथ पहले कंप्लीट किया है, ठीक है, बट मैं भी कंसल्टेंट हो गया ना, तो होता है, ठीक है, बट वो एडेड एडवांटेज है ना, आप कर लो ना। अच्छा, सर्टिफिकेट आप इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है कि वो बाहर। मतलब ठप्पा लग जाएगा ना, आप सर्टिफाइड कंसल्टेंट हो। पर वो अनलिमिटेड वैलिडिटी है ना उसकी, क्या एक साल वैलिड है? नहीं नहीं, वैलिडिटी अभी वो इसने रखा है एसीपी ने। अभी वो देखो ये सब कैसा है, जीसीपी को भी एग्जाम सेल करना है उनका, ठीक है, उनको भी प्रॉफिट बनाना है, बराबर। तो उन्होंने वो कंडीशन चेंज कर दी कि ये फुल टाइम वैलिड नहीं, अभी 1 ईयर के लिए ये रहेगा, वैलिड रहेगा। क्योंकि एसीपी क्या करता है, वो अपडेट होते जाता है ना, ठीक वो है, तो एग्जाम अपग्रेडेड भी अपडेट सिस्टम होती है सीखना। आपकी। हाँ, तो वो क्या करता है, एज अपडेटेड वर्जन करके रिलीज करता है कि ये आप कर लो, मतलब इसमें ऐसा ऐसा चीजें कवर हो जाए ऐसा। जैसे और उसके एस4 बाद आना वो उन्होंने आपकी किया रिलीज, ठीक है, एस4 आना के उन्होंने बोल दिए फीचर 2022 में है, ओके, 23 में किसी और चीजों के फीचर्स है। तो एग्जाम भी वैसे ही पूछते, क्वेश्चन भी वैसे ही पूछते वो लोग, ठीक है। तो दे अज्यूम कि हाँ इन्होंने अपडेटेड वर्जन के लिए सर्टिफिकेशन हुआ है इनका, मतलब इनको ये पता है जी। ऐसा कुछ रहता नहीं है, बट वो एक अजम्पशन, मतलब ठीक है ना, समझ गए ना आप? हाँ वो एक समझिए, हाँ, एक एडवांटेज जैसे है, वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। एडवांटेज है, हाँ। इट्स लाइक अ फोन ओनली यार, आज जैसे आईफोन 14 है, 15 है, वैसा ही ये है हाँ हाँ। फर्क बस, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्स में फर्क है आपका, दैट्स इट। अभी ऐसे तो नहीं बोल सकते आईफोन 14 एडवांस है आईफोन 15 से, ऐसे नहीं बोल सकते ना, तो सेम वैसा है। आपकी करेक्ट है। इंटरनल ट्रेनिंग कर लेना पड़ता है क्या जॉब के लिए, सॉफ्टवेयर का अपडेट हुआ तो? सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो देखो, जैसे S4 आना आया उसमें एडवांस प्लानिंग आया, ठीक है। अच्छा। अभी इसके लिए तो ट्रेनिंग लगेगा एडवांस प्लानिंग सीखने के लिए, हम्म क्योंकि जो जैसे ये बना है 1917 में, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, हम्म इसका कोडिंग हुआ था 1970 में। तो वो लास्ट 50 ईयर से सब लोग ट्रेडिशनल जो होता है प्लानिंग, उसी का ही कर रहे हैं यूज। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 50 ईयर से सेम चीज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एडवांस होते गया, आते होते गया। ईसीसी का हो गया, ईसीसी ईएचपी था पहले, फिर 6.2 हो गया, तो ऑब्वियसली कुछ फीचर्स ऐड हुआ हुआ, ठीक है। बट फिर भी ऐसा समझ लो कि 50 ईयर से सेमी ट्रेडिशनल चीज चल रहा था, ठीक है। जैसे एडवांस प्लानिंग आया तो प्लानिंग आपका एडवांस हो गया, जो भी आप प्लान करते हो ना, सीखेंगे क्या है प्लानिंग वगैरह सब सीखेंगे, ठीक है, आराम से सीखेंगे। तो ये जो प्लानिंग है, जैसे मैंने बोला, एडवांस हो गया, ओके।
सो ऐसा फीचर्स होता है। तो ये एडवांस प्लानिंग अगर कुछ फीचर ऐड होता है इन पर्टिकुलर JS4 तो वो तो पहले ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप जा पाओगे। इसके लिए कुछ साइट्स है जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। वो क्या साइट्स है, ACP का ऑथराइज साइट्स है, वो कैसे देखना है वो भी देखेंगे, आराम से देखेंगे वो भी। मतलब जैसे अभी देखो, मैंने जैसे बोला आपको कि मेरे ऐसा तो है नहीं कि पूरा कोर्स ही सिखा सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट सपोज आपको कुछ ऐसा इशू है, जब आप कंसल्टेंट हो जाओगे, ऐसा इशू है कि आपको मैंने भी नहीं सिखाया है, कभी पता भी नहीं, कुछ भी नहीं, देन हाउ टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर इशू, वो भी हम सीखेंगे। किस साइट में मुझे जाना है, क्या साइट से जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मतलब प्रॉपर मुझे गाइड करेंगी, क्लाइंट वे से कैसे गाइड करेंगे। मतलब क्या होता है, जो भी क्लाइंट रहता है ना, वो मतलब ACP का सर्विस है ना, परचेस करता है, ठीक है। तो उसका एक साइट बनता है, ओके। तो वो साइट पे ID पासवर्ड डाल के आप अगर करोगे साइन इन, तो आप डायरेक्ट जो ACP का जो कंपनी है, मेन कंपनी, वहाँ पे जो कंसल्टेंट है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको कुछ इशू आ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो आप उसे भी एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि कैसा प्रोसेस होता है इन इंडस्ट्री पे, ठीक है। और क्या क्या साइट से रिस्पॉन्सिबल, जेन्युइन साइट्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ACP कम्युनिटी है, .com है, वैसे बहुत सारे साइट्स है। वो में सक्सेस फैक्टर है, सॉरी सक्सेस फैक्टर ACPhelp.com है, ठीक है। तो ये पर 3 साइट्स है बेसिक। आप जो क्या हाँ, अभी सिखाते हो, ऐसा भी सिखा सकेंगे क्या कि कोई भी अपन जो करते हैं काम, तो उसमें एरर ऐसा आ सकता है, पॉसिबल है यस ऐसा? यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हम्म, एरर आता है तो एरर को एड्रेस कैसे करना है, मतलब हाँ वो नहीं, गूगल पे क्या डालना है कि वो एरर का ये आ जाए, बराबर है। डिस्क्रिप्शन आ जाए, ठीक है। बग्स एरर बग्स मैसेज डालने से कभी कभी आता नहीं है, बट मतलब कैसे आएगा वो, कैसे उस तक पहुंचना है, वो भी सिखाऊंगा आप। राइट राइट। जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि 100% सिखाना पॉसिबल ही नहीं है मेरे को, आपको लगेगा 5 साल सिखाने के लिए। मतलब इतना बड़ा, इतना वास्ट है, ठीक है। बट इसको आई मीन कॉम्प्रिहेंसिव वे में सीखना कैसे है ना, कम टाइम में कैसे सीखना है, अप्रोच क्या रहेगा। अप्रोच आपको एक बार फिट हो गया ना आपकी इसमें, आपको सब समझ जाएगा। मतलब मुझे किसी भी चीज का अप्रोच कैसे करना है, सोल्यूशनिंग कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे मैं एनालिसिस करूँ इसका प्रॉपरली, ये चीजें आपके माइंड में फिट हो गई ना, तो आप इजीली कुछ भी कर सकते हो, ओके। ठीक है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि मेरा क्लास में नहीं हुआ है तो मैं कैसे करूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। वो सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। मैं ये देखता हूँ, मेरा लैपटॉप का थोड़ा इशू हो गया है, वो आइकॉन ही नहीं आ रहा और एक क्वेश्चन, एक्चुअली। वो मैं कल इंश्योर एक्चुअली करता हूँ कि हाँ। एक्चुअली आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं जो सचिन सर ने पूछा था। हाँ, ये जो सर्टिफिकेशन अभी जो अपन कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, उसका वैलिडेशन कितना रहेगा? 1 ईयर का रहेगा कि कितना रहेगा? 1 ईयर का वैलिडिटी है एज पर ACP, बट आपके हम्म, रिज्यूम में कुछ नहीं है ना वैलिडिटी। आपके रिज्यूम में तो ठप्पा लग गया ना कि आप ACP सर्टिफाइड कंसल्टेंट हाँ, हो गए, ओके ओके खत्म ओके बात। ओके। आपको करना है तो मतलब 5 साल उसको, फिर से कर लेना। हाँ हाँ हाँ। अभी देखो, आपको मैं बता दूं कैसे करना है सर्टिफिकेशन। अभी मैं जिस फर्म में हूँ, मैंने उनसे इंटरनली करके, वो रहता है ना, वो 20,000 रुपये मिलता है हमको फ्रॉम द कंपनी हम्म एक्चुअली, हम्म सर्टिफिकेशन करने का। हम्म, तो मैंने कर लिया सर्टिफिकेशन उनसे, ठीक है। ओके अभी क्या होता है, मैं जब कंपनी स्विच करूंगा तो फिर से कर लूंगा अपडेटेड वर्जन, खत्म बात। आप क्यों आपका ओके, पैसा वेस्ट करेक्ट। कर रहे हो, करेक्ट ना। हम्म, करेक्ट है। हाँ, खत्म बात। आपको बीस हम्म बीस हजार हम्म रुपये खर्च करने की जी नहीं है ना, 20,000 इज हाई हम्म, कॉस्ट ना। करेक्ट है। अभी आप कोई ऑब्वियसली। तो मेरे साथ 5,000 के लिए कर रहा था अभी तो ये तो 20,000 हो गया ना, बराबर है ना। करेक्ट है। क्यों आप बराबर है। इतना पे कर रहे हो, बराबर। आपको खाली ठप्पा करेक्ट है। चाहिए ना आपकी इसमें कि आप सर्टिफाइड कंसल्टेंट हो गए हो, दैट्स इट। कंसल्टेंट हो गया। हाँ बस, वो फिर आपका खाली ये रहेगा कि सर्टिफाइड ACP सर्टिफाइड कंसल्टेंट, आप वो डालते हो 2022 का मेरे पास सर्टिफिकेट, दैट्स इट। बट बेसिकली आप सर्टिफाइड कंसल्टेंट हो ना, खत्म। ठीक है? जैसे हो जैसे गया। कंपनी स्विच करते जाओगे तो वैसे वैसे सर्टिफाइड भी, सर्टिफिकेशन भी अपग्रेड कर लेना बाद में, कंपनी के पैसे से, अपने पैसे से, ठीक है। अपने पैसे से नहीं, करेक्ट है। बस, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। चलेगा। तो फिर कनेक्ट करेंगे कल, ओके, 9 PM। कल 9 o'clock। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? नहीं नहीं, अभी जैसे आगे क्लासेस जाएंगे वैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अभी तो क्लियर है सब। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। डिपार्टमेंट कौन क्लियर है रहेगा सर। सर? वो
बट एक अपना एक पर्सनल ग्रुप बना दीजिए तो बेटर रहेगा। एक काम करिए ना, आप बहुत आप अच्छी में से आपकी है। कोई आप में से एक कोई कर लो ना वो काम, है ना। ठीक सुमित, है, आप देखो मैं करोगे? कर कौन लेता हूँ करेगा। ना, हाँ हाँ सर, ठीक कर है, लीजिए। हाँ चलेगा। जी ओके मैं कर जी लेता जी, हूँ। ठीक है ठीक है कौन सर, ठीक है करेगा? सर। को राहुल इनवाइट करेगा? कर लेना उसमें। मैं हेलो कर राहुल, आप लेता हूँ, मैं कौन सबका कौन बोल नंबर रहे तो हो? है उसी में, मैं ऐड कर दूंगा। कौन बोल रहे हैं? सचिन 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 शिंदे। सचिन सर। सचिन आप सचिन कर लोगे ना? हम्म, सचिन। अनऑफिशियल ग्रुप हाँ में मैं कैसा कर सब। लूंगा, मैं ऐड कर दूंगी सब लोग। हाँ, अनऑफिशियल ग्रुप में क्या है, सबका कम्युनिकेशन होगा ना तो सबको बेनिफिट होगा। अगर हाँ सर पर्सनली बात बिल्कुल करेंगे ना तो हाँ उसमें समझेगा नहीं कि ओनली कौन किससे एस्टेक बात के कर रहा एडमिन, है। हाँ, जी। सबको नहीं नहीं एक बेनिफिट काम होगा। करेंगे, इंस्टीट्यूट ने उसमें कुछ ओनली ये शेयर एस्टेक के किया है एडमिन क्या को नहीं आपको? रखेंगे, बाकी सबको रख देंगे। हाँ, हाँ, एस्टेक वही वाले करें। को मत रखना। क्या हुआ सर? एस्टेक वाले को मत रखना। नहीं जो मैं बोल एस्टेक रहा वाला था, है ना, नहीं मैं आशा बोल रहा मैडम था, और ये कविता को मत नहीं रखना। हम्म, हाँ उनको उनको छोड़ के बाकी सबको ऐड कर देंगे ना। यस, करेक्ट। ठीक है, वो सचिन शिंदे कर देंगे ना, ग्रुप बना देंगे, एस्टेक वाले को छोड़ के बाकी सब लोग को ऐड कर देंगे। यस, करेक्ट। हाँ मैं वही सर, हाँ बोल रहा हूँ, बिल्कुल। मैं उसमें वही ना बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन एस्टेक डाल वाले देना, को छोड़ के बाकी एस्टेक सबको ऐड कर। अनऑफिशियल ग्रुप। करेक्ट है, अनऑफिशियल हाँ। ग्रुप डालो डिस्क्रिप्शन। अनऑफिशियल ग्रुप। हाँ उसका रीनेम वगैरह कर देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा। थैंक और यू। वो ये जो है कंटेंट कुछ शेयर किया है क्या इन्होंने, कविता ने कुछ कंटेंट नो सर। प्रोडक्शन प्लानिंग का? नहीं किया है सर, सर। मुझे एक पूछना था, इसका कोई स्टडी बुकलेट मटेरियल है वगैरह उसमें। कुछ नहीं मिलेगा क्या हमको, ई बुक वगैरह कुछ ऐसा? मैंने कैसे स्टडी ऑलरेडी करेंगे पूछा हम था। इसको? नहीं, ऑलरेडी अभी मैंने कोई पूछा था तो उन्होंने बोला था ई बुक मिलेगा करके। हाँ, ई बुक है हमारा ये। अच्छा मिलेगा बोले। मैंने हाँ, ही ई खुद ये बुक करके मिलेगा। मैंने किया है, पूछा तो मैंने बनाया है। पूछा तो मुझे बोले कि पीपी मॉडल में कुछ नहीं मिलता है, ई बुक भी नहीं मिलेगा, हार्ड कॉपी भी नहीं मिलेगा। नहीं, ई बुक है ना उनका, ई बुक है ना। मतलब कुछ पीडीएफ जैसा कुछ तो डाउनलोड, पीडीएफ जैसा कुछ तो दो कोई डेटा बात नहीं, प्रोवाइड किया था। कोई बात नहीं। उसमें क्या कहते हैं। ये काम करता हूँ मैं, जो मेरा खुद का है ना नोट्स, वो मैं शेयर कर लूंगा। आप ई बुक से हाँ अच्छा मैं जो शेयर कर रहा हूँ उसी को ही रेफर करो, वो सही है। चलो, थैंक यू सर। इस तो हमें अनऑफिशियल सर पे थैंक यू सर। क्रिएट स्टडी करेंगे के लिए डाल। कुछ चाहिए ना, क्योंकि कोर्स चलता रहेगा, बट स्टडी के लिए भी कुछ रहेगा सर डेली, तो हमारा भी कांटेक्ट बना रहेगा ना। इसका एस्टेक का भी एग्जाम होता है क्या ये कोर्स खत्म होने के बाद? हाँ, इनका एक होता है एग्जाम, खुद का एग्जाम होता है इनका, लास्ट में होता है वो, आफ्टर 45 क्लासेस कंप्लीशन होता है ना, उसके बाद होता वो कुछ एनएसडीएल वो का तो कुछ सर्टिफिकेट। नॉमिनल एग्जाम बोला मुझे हिमांशु। हाँ वो कुछ तो है। ये एनएसडीएल है कुछ ना अपना गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का, टाई अप है। उसका हाँ सर्टिफिकेट मिलता है आपको। हाँ, तो हाँ हाँ वो गवर्नमेंट तो के है साथ टाई अप है कुछ, बट इनका, तो नॉमिनल क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, ऐसा कुछ है नहीं। राइट राइट, आप लोग हमें वो मेन एग्जाम पे आई थिंक वो अपने को फोकस इजी करना पड़ेगा। पड़ेगा। राइट राइट राइट, चलेगा। थैंक यू। हाँ गुड नाइट। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय, गुड बाय नाइट। गुड ऑल। नाइट सर। थैंक यू। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर, सचिन गुड नाइट। मैं सचिन करता सर हूँ, वो कल ग्रुप आज बनाता ग्रुप, हूँ। हाँ वो ग्रुप थोड़ा ठीक सर। क्रिएट कर हाँ सर, दीजिए। हाँ सर। बना दूंगा हाँ सर, बना दे के सबको ऐड करता हूँ मैं। ठीक है चलेगा। सर, थैंक ठीक यू। है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू सर, मच। गुड नाइट। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। बाय बाय। मिलते हैं, गुड कल नाइट। मिलते हैं। ओके ठीक है हाँ, सर। कल बाय। मिलते हैं। सर इसका बाय बाय। रिकॉर्डिंग कहाँ पे शेयर होगा सर, इसका रिकॉर्डिंग कहाँ शेयर होता है? सर लेफ्ट हो गया। वो तो निकल गए, वो तो निकल गए। नहीं सर, भाई वो मंडे को वो भेजें ग्रुप में। वो तो इसमें ड्राइव में सेव ग्रुप हो पे। जाता है। हाँ नहीं, इसका जो रिकॉर्डिंग है वो ड्राइव हाँ में हाँ देखते सेव हो हैं जाएगा। देखते हैं फिर। हम्म। ठीक। अच्छा, तो वहां से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको। हाँ, ड्राइव में रहेगा, वो ड्राइव से डाउनलोड कर देने का हो जाता है उसमें। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सचिन। ओके, ओके, थैंक बाय यू सो मच, बाय बाय बाय, बाय, गुड थैंक यू। नाइट।